Hi everyone, this is Akanksha here and welcome back dear learners on this such a marvelous learning platform of Bright Avishkar. I hope you all will be doing awesome and I am sure you all are doing very well. As you know dear learners, we have started the series of antonyms and synonyms. So dear learners, with today's lecture, we shall finish the series of antonyms and synonyms. Dear friends, this is the last lecture which is based on antonyms and synonyms and this is last lecture from my side dear friends. Hope you have watched all the previous lecture and all these lectures were very beneficial for you and very helpful for you. So dear learners, आज आपको अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, क्या ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल थी. तो मस्ट शेयर योर फीडबैक अबाउट द सीरीज ऑफ एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स. So without wasting our too much time, let's get started our today's lecture. Dear learners, today's our first word is that illustrate. Illustrate जिसका मतलब होता है समझाना. Dear learners, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है तो इस यहाँ पे समझना नहीं है, समझाना है. Our first word is that illustrate, which means समझाना. Its synonym is that show, explain, represent, demonstrate. Show, explain, represent, demonstrate. These are the synonyms of illustrate word and antonyms is that puzzle, confuse, becloud. Puzzle, confuse, becloud. These are the antonyms of illustrate word. Let me take one example. Example is that the teacher illustrates the psychology very well. The teacher illustrates the psychology very well, which mean जो हमारे टीचर्स हैं वह हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं. हमारे टीचर्स जो हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट को यानी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाते हैं. दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन दिस लेक्चर. होप यू हैव गॉट दिस वर्ड इन अ ब्रिलियंट वे. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन इज दैट कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी विच मीन साजिश. अवर सेकेंड वर्ड इज दैट कॉन्स्पिरेसी जिसका मतलब होता है साजिश. Its synonym is that trick, collision, plot. Trick, collision, plot. These are the synonyms of conspiracy word and antonyms is that truth, accuracy, reliability. Truth, accuracy, reliability. These are the antonyms of conspiracy word. Example is that he is arrested due to the conspiracy of a policeman. He is arrested ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ए पुलिसमैन, विच मीन कि वह पुलिसमैन की साजिश से अरेस्ट हुआ. दिस इज द सेकेंड वर्ड दिस लेक्चर. होप दिस वर्ड इज क्लियर यू ऑल. नेक्स्ट वन इज दैट इनकैप्सुलेट. अवर थर्ड वर्ड इज दैट इनकैप्सुलेट जिसका मतलब होता है छोटा करना. वर्ड जो है हमारे पास इनकैप्सुलेट जिसका मतलब होता है छोटा करना. इट्स सिनोनिम इज दैट कट, सम अप, एब्रिज. कट, सम अप, एब्रिज. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इनकैप्सुलेट वर्ड एंड एंटोनिम्स इज दैट एलैबोरेट, लेविश, कॉम्प्लेक्स. एलैबोरेट, लेविश, कॉम्प्लेक्स. दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ इनकैप्सुलेट वर्ड. Let's see example so that you can understand this word in a brilliant way. Example is that the teacher encapsulated his lecture so that the students didn't feel bored. The teacher encapsulated his lecture so that the students didn't feel bored. Which mean कि जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने लेक्चर को छोटा किया. टीचर्स ने अपने लेक्चर को छोटा किया ताकि स्टूडेंट बोर फील ना करें. नेक्स्ट वन इज दैट बैटरे. जो हमारे पास वर्ड है बैटरे जिसका मतलब होता है धोखा देना. इट्स सिनोनिम इज दैट डिवाइस, डिल्यूड, डिसीव, डिल्यूड, चीट. सिनोनिम है इसका डिसीव, डिल्यूड, चीट. These are the synonyms of battery word and antonyms is that support, guard, defend. Support, guard, defend ये सारे के सारे antonyms हैं battery word के. Example है he has betrayed so many people
That's why people don't believe him. He has betrayed so many people. That's why people don't believe him. Which mean कि उसने बहुत सारे लोगों को वह बहुत सारे लोगों को धोखा दे चुका है, जिसकी वजह से लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं. वह जो लड़का है वह बहुत सारे लोगों को धोखा दे चुका है, जिसकी वजह से लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं. Hope guys this word is clear you all. Next one is that vicinity. Vicinity का मतलब होता है पड़ोस. हमारे पास वर्ड है vicinity जिसका मतलब होता है पड़ोस. इसका synonyms है locality, neighborhood, proximity. Locality, neighborhood, proximity. These are the synonyms of vicinity word, and antonyms is that distance, remoteness, far away. Distance, remoteness and far away. These are the antonyms of vicinity word. Let's see example so that you can get this word in a best way. Example is that my friend lives in the vicinity of my house. My friend lives in the vicinity of my house, which mean कि वह मेरे घर के यानी वह मेरे घर के पड़ोस में, जो मेरा फ्रेंड है वह मेरे घर के पड़ोस में रहता है या मेरे घर के आसपास रहता है. वैसिनिटी को हम पड़ोस भी कहते हैं और आसपास भी कहते हैं. जो मेरा फ्रेंड है वह मेरे घर के आसपास रहता है यानी मेरे पड़ोस में रहता है. होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर यू ऑल. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन इज दैट एनकम्पोज. एनकम्पोज का मतलब होता है घेरना, यानी किसी चीज को कवर करना, शामिल करना. वर्ड जो है हमारे पास एनकम्पोज, जिसका मतलब होता है घेरना, शामिल करना, यानी किसी चीज को कवर करना. सिनोनिम है इसका कवर, एनक्लोज, सराउंड. कवर, एनक्लोज, सराउंड. These are the synonyms of encompass word, and antonyms is that exclude, annual, abolish. Exclude, annual, abolish. These are the antonyms of encompass word. Let's see example. Example is that we have encompassed all the places on our list where we want to visit. We have encompassed all the places on our list where we want to visit, which mean कि हम हर एक जगह को, यानी हम सारी प्लेसेस को शामिल कर चुके हैं या कवर कर चुके हैं अपनी लिस्ट में. यहाँ हम जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम विजिट करना चाहते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट डिवाइस. डिवाइस का मतलब होता है डियर लर्नर्स आविष्कार करना, विचार करना. वर्ड जो है हमारे पास डिवाइस, जिसका मतलब होता है आविष्कार करना, विचार करना. इसका सिनोनिम है क्रिएट, थिंक अप, इन्वेंट, प्लान. क्रिएट, थिंक अप, इन्वेंट, प्लान. These are the synonyms of device word, and antonyms is that duplicate, destroy, disorder. Duplicate, destroy, disorder. These are the antonyms of device word. Let's see example. Example is that telecom operator Jio should devise a solution to increase the internet speed. Telecom operator Jio should devise a solution to increase the internet speed, which mean कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जियो के, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, किसी सॉल्यूशन का आविष्कार करना चाहिए जिससे क्या हो सके, इंटरनेट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सके. होप गाइस दिस वर्ड इज क्लियर यू ऑल. नेक्स्ट वन इज दैट प्रोवेस. प्रोवेस का मतलब होता है वीरता, जिसे हम बोलते हैं कौशल. वर्ड जो है हमारे पास प्रोवेस, जिसका मतलब होता है वीरता, बहादुरी, कौशल. इसका सिनोनिम हो गया करेज, ब्रेवरी, प्रोफेशनलिज्म, हीरोइज्म. करेज, ब्रेवरी, प्रोफेशनलिज्म, हीरोइज्म. ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं प्रोवेस वर्ड के. इसके एंटोनिम्स जो है वो है इनएबिलिटी, वीकनेस, कोवर्डाइज. इनएबिलिटी, वीकनेस, कोवर्डाइज, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं किसके, प्रोवेस वर्ड के. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास इंडियन सोल्जर्स हैव शोन देयर प्रोवेस मैनी टाइम्स इन हिस्ट्री. इंडियन सोल्जर्स हैव शोन देयर प्रोवेस मैनी टाइम्स इन हिस्ट्री, विच मीन कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं हमारे, वो क्या कर चुके हैं, वो बहुत बार अपनी बहादुरी जो है, अपनी वीरता जो है वो बहुत बार हिस्ट्री में बता चुके हैं, हिस्ट्री में शो कर चुके हैं.
हमारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो अपनी बहादुरी, अपनी वीरता को बहुत बार हिस्ट्री में शो कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज दैट सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है निष्क्रिय या बैठे रहने वाला व्यक्ति। वर्ड जो है हमारे पास सेडेंट्री, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय या बैठे रहने वाला व्यक्ति, जिसका सिनोनिम हो गया इनएक्टिव, स्लगिश, डोरमेंट। इनएक्टिव, स्लगिश, डोरमेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है किसके? सेडेंट्री वर्ड के। और एंटोनिम्स है इसका ट्रैवल, जीपी, एथलेटिक, ड्रिफ्टिंग। ट्रैवल, जीपी, एथलेटिक, ड्रिफ्टिंग, ये सारे के सारे एंटोनिम्स है किसके? सेडेंट्री वर्ड के। लेट मी टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है हमारे पास, these days the kids are becoming sedentary because of TV. These days the kids are becoming sedentary because of TV, which mean कि जो हमारे बच्चे हैं, आजकल बच्चे क्या बन रहे हैं? वो एक सेडेंट्री बन रहे हैं। किसकी वजह से? टीवी की वजह से। बच्चे जो हैं वो सेडेंट्री यानी वो एक निष्क्रिय बन रहे हैं। किसकी वजह से? टीवी की वजह से। होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर यू ऑल। नेक्स्ट वन इज दैट dilapidated, and this is the last word in this lecture. वर्ड जो है हमारे पास dilapidated, जिसका मतलब होता है टूटा फूटा। डियर लर्नर्स, हमारे पास जो वर्ड है dilapidated, उसका मतलब होता है टूटा फूटा या उबड़ खाबड़, जिसका सिनोनिम्स है डैमेज्ड, डिमोलिश्ड, इम्पेयर्ड। डैमेज्ड, डिमोलिश, इम्पेयर्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं dilapidated वर्ड के। और इसका एंटोनिम्स जो है वो है improved, built, fixed। improved, built, fixed, these are the antonyms of dilapidated word. Let me take example so that you can understand this word in a brilliant way. Example is that there are millions of poor people. There are millions of poor people in the world who are still living in dilapidated house. Which mean कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि अभी तक किस में रह रहे हैं? टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। दिस इज द लास्ट वर्ड इन दिस लेक्चर। होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड गॉट सम न्यू वोकैबुलरी फ्रॉम दिस लेक्चर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। लाइक दिस लेक्चर, शेयर विद अदर। सो डियर लर्नर्स, आज आपके लिए खास बात यह है कि आज हम अपनी सीरीज को फिनिश कर चुके हैं। डियर लर्नर्स, टुडे आई हैव फिनिश्ड दिस सीरीज फ्रॉम माय साइड। होप यू ऑल हैव फिनिश्ड योर साइड। डियर लर्नर्स, आप हमारे जो आई होप कि आप सब इस सीरीज को फिनिश कर चुके होंगे। बिकॉज शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन देखते हैं एंड कौन करता है। तो डियर लर्नर्स, आज मैं अपनी साइड से एंड कर चुकी हूँ। आई होप कि आप सब अपनी साइड से एंड कर चुके होंगे। अगर आपने भी अपनी साइड से एंड कर दिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो आप हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट चेक करके वहाँ से आप इन सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो और इन सब का बेनिफिट ले सकते हो। So thanks for watching this video. Dear learners, as I told you already, this is the last lecture from my side. I would like to say thanks all of you for your contribution, for your kind blessings, for your kind words. And especially I would like to say thanks, sir, for providing me such a wonderful platform, providing me a golden opportunity. I am always grateful to you, sir. Once again, thanks everyone. Stay blessed and keep learning. Keep blessing me. Bye bye to all.